یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اندھیروں کو روشنی دی، مگر ان کے اپنے ہی قوم نے ان کے قتل کا ناپاک منصوبہ بنا لیا۔ مگر جب دشمن ان کی دہلیز پر کھڑے تھے تب اچانک آسمان کھل گیا اور قدرت نے وہ معجزہ دکھایا جسے سن کر آج بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نہ وہ قتل ہوئے، نہ صلیب پر چڑھائے گئے، تو پھر اس رات کیا ہوا تھا؟ جس نبی کو قتل کرنے آئے تھے وہ گیا کہاں؟ اور سولی پر لٹک کر تڑپنے والا اصل میں کون تھا؟ چلیے دیکھتے ہیں تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ اور اللہ کی سب سے بڑی حکمت۔ بیت المقدس، یروشلم، وہی شہر جہاں انبیاء کی صدائیں گونجتی تھی، جہاں سجدوں کی خوشبو تھی اور جہاں اب رومن جھنڈے لہراتے تھے۔ بنی اسرائیل کا شہر، لیکن حکومت رومن امپائر کا چلتا تھا۔ گلیوں میں رومن سپاہی، ظلم عام تھا، انصاف مہنگا اور حق بولنا جرم۔ رومن قانون کے نیچے بنی اسرائیل صرف سانس لے رہے تھے، جینا ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ اسی اندھیرے دور میں اللہ نے اپنی رحمت کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، قرآن کہتا ہے وہ نبی بھی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بھی۔ ایک دن زکریا علیہ السلام محراب میں گئے تو دیکھتے کہ مریم علیہ السلام کے پاس ایسا رزق تھا جو اس شہر کی زمین پر مل ہی نہیں سکتا تھا۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا، اے مریم، یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ مریم علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہیں سے زکریا علیہ السلام کے دل میں یقین اور گہرا ہو گیا اور یہ واقعہ اپنی بیوی کو بتایا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی حکمت اور تقوی کا نشان تھے۔ دوسری طرف اللہ نے وہ کر دکھایا جو عقل سے باہر تھا۔ ایک دن مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا۔ مریم علیہ السلام اس فرشتہ سے انجان تھی اور انہوں نے کہا، میں رحمان کی پناہ لیتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے تو دور رہ۔ جواب آیا، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ پھر وہ الفاظ جو تاریخ بن گئے، میں اللہ کی طرف سے تجھے ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں؟ جواب صرف اتنا تھا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مریم علیہ السلام سمجھ چکی تھی یہ بصارت نہیں، امتحان ہے، اور بیت المقدس کو ابھی پتہ بھی نہیں تھا کہ جلد عیسیٰ ابن مریم پیدا ہونے والے ہیں۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو لوگ بول اٹھے، یہ کیسا جرم ہے؟ مگر اللہ نے گود میں موجود بچے سے جواب دلوا دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا۔ یہ صرف جواب نہیں تھا، یہ بیت المقدس کے لیے تنبیہ تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی۔ اپنے پڑوسیوں سے ویسا ہی پیار کرو جیسا تم خود سے کرتے ہو۔ وہ شہر شہر گئے، گاؤں گاؤں گئے، لوگوں کو حق کے راستے پر چلنے کا حکم دیا۔ اللہ ایک ہے اور تم اسی کے بندے ہو اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ ان کے ساتھ کچھ سچے ساتھی بھی تھے جو دولت کے لیے نہیں، حق کے لیے چلے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے، جب مٹی سے پرندے بنا کر انہیں زندہ کر دکھایا، جب اندھے دیکھنے لگے، جب مردہ زندہ ہوئے، تو عام لوگ اللہ کے راستے کی طرف جھکنے لگے۔ اب شکار ملنا تو ناممکن ہو چکا ہے۔ رومن سپاہیوں کو اس بار پیسے نہیں دیے تو وہ تمہاری جان لے لیں گے۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب جال اٹھاؤ۔
ये कैसे हो सकता है? आप कौन हैं? मेरे साथ चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। ये वो वक्त था जब लोगों को राहत मिल गई कि अल्लाह ने अपने नबी को उनकी रहनुमाई के लिए भेज दिया है, और यहीं से सरदारों के दिल और सख्त हो गए। उन्होंने कहा, याहिया पहले ही लोगों को हमसे अलग कर रहा है और अब ये ईसा के मौजिज़े लोगों को और गुमराह कर रहे हैं। हमारी रियासत खतरे में है। तफसीर इब्ने कसीर बताती है, यहूदी सरदारों ने रोमन हुक्मरानों के पास जाकर कहा, याहिया और ईसा बगावत करवा रहे हैं, ये खुद को बादशाह कह रहे हैं। झूठ था, लेकिन रोमन तलवार को सिर्फ हुक्म चाहिए होता है। गवर्नर ने पूछा, तुम चाहते क्या हो? उन्हें गिरफ्तार करो। तफसीर इब्ने कसीर में आया है, याहिया अलैहिस्सलाम उस वक्त हुक्मरानों के जुल्म और गलत रिश्ते पर हक बोल रहे थे, तो रोमन और यहूदी सरदारों ने उन्हें कैद कर लिया और अपने सरदारों के सामने कत्ल करवा दिया। शहर ने खामोशी इख्तियार कर ली। एक शख्स भागता हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, आपके खालाजाद भाई हजरत याहिया अलैहिस्सलाम को इन्होंने कत्ल करवा दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि ज़हर सुलम में उनके खिलाफ भी साजिश हो चुकी है। एक बार फिर अल्लाह के नबी के लिए कत्ल का फैसला लिखा जा रहा था। चेहरों पर तकवा का लिबास, मगर दिलों में हसद और खून। ईसा इब्ने मरियम हद से आगे जा चुका है। लोग उसे नबी कहने लगे हैं। अगर ये जिंदा रहा तो हमारी अदालत, हमारी तौरात की तशरीह सब खत्म हो जाएगी। यहाँ तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक ये लोग हक को पहचानते थे मगर उसे छुपाते थे। हमने पहले भी याहिया को खामोश कर दिया था। खामोशी छा गई। जवाब आया, ईसा का भी अंजाम वही होगा, मगर हम खुद हाथ गंदे नहीं करेंगे। सब समझ गए। एक मुरब्बी ने कहा, हम रोम के सरदारों को कहेंगे कि ईसा बगावत कर रहा है, ये खुद को बादशाह कहता है। फिर कलम उठाया गया। ईसा इब्ने मरियम कौम के लिए खतरा। उस कागज पर मोहर लगी और फैसला सुना दिया गया। कत्ल। उस अदालत में न इंसाफ था न रहमत, सिर्फ डर और कुर्सी बचाने की भूख। कुरान की ये बात गूंजती है, वो नबी को नाहक कत्ल करते रहे। उस रात बैतुल मुकद्दस की अदालत में सिर्फ एक बिल नहीं निकला, एक और नबी के खून का रास्ता लिख दिया गया। और उन्हें लगता था कि इस दफा ईसा इब्ने मरियम बच नहीं पाएंगे, मगर वो ये भूल चुके थे कि जिस रब ने मरियम अलैहिस्सलाम को पाक रखा, ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, याहिया अलैहिस्सलाम को शहादत के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रखा, उसी रब ने ईसा इब्ने मरियम को सिर्फ तबलीग के लिए नहीं भेजा था। ये घटिया लोग अपने सच्चे नबी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तफसीर इब्ने कसीर में आया है कि उस रात ईसा अलैहिस्सलाम अपने चंद वफादार साथियों के साथ बैठे हुए थे। कमरे में खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो तूफान से पहले होती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात तुम में से एक शख्स मुझे दुश्मनों के हवाले करेगा। साथियों के चेहरे बदल गए। किसी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या वो हम में से ही होगा? ईसा अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई और फरमाया, वो यहीं बैठा है। दिल तेज धड़कने लगे। तफसीर के मुताबिक वो शख्स यहूदा उदास था, जो जाहिर में साथी मगर दिल में लालच और खौफ रखता था। यहूदा की आंखों में लाजिश आई। वो खामोशी से उठा और कमरा छोड़कर निकल गया। एक लड़के ने पूछा, क्या हम उसे रोकें? ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, जो लिखा जा चुका है वो होकर रहेगा। और उस रात गद्दारी ने अपने कदम उठा लिए। अल्लाह ने फरमाया, ए ईसा, तुझे मैं अपनी तरफ उठाने वाला हूँ और तुझे काफिरों से पाक करने वाला हूँ। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने वो बात कही जो आने वाले वक्त के लिए तारीख बन गई। मेरे बाद एक नबी आएगा, उसका नाम अहमद होगा।
ये वही बात है जो कुरान ने खुद बयान की और इसका जिक्र बाइबल में भी है। वो आखिरी होगा, वो तुम्हें मेरी बातें भी बताएगा और जो तुम भूल गए उसे भी पूरा करेगा। क्या लोग उसे मान लेंगे? कुछ मानेंगे, कुछ इनकार करेंगे। और साथ ही समझ गए ये सिर्फ बसारत नहीं थी, ये तारीख का अगला बाप था। बाहर निकलो, आज कोई नहीं बचेगा। अचानक बाहर से आवाज आई, साथी घबरा गए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा, तुम सब यहाँ से चले जाओ और डरना नहीं, क्योंकि अल्लाह मुझे इन जालिमों से बचा लेगा। कमरे में खामोशी। आज तुम्हारा जादू नहीं चलेगा, दरवाजा तोड़ दो। और फिर वक्त रुक गया। ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द नूर छा गया, जमीन उनसे अलग होने लगी, आसमान के दरवाजे खुल गए और ईसा इब्ने मरियम जिंदा उठाए गए। यहूदी समझ ही नहीं पाए कि जिसे वो पकड़ने आए थे वो तो उनके हाथ से निकल चुका था। कुरान बिल्कुल वाज़े कहता है, न उन्होंने ईसा को कत्ल किया, न सलीब दी, बल्कि उन पर सुबह डाल दिया गया। तो आखिर सवाल ये है कि ईसा इब्ने मरियम की जगह वो शख्स कौन था जिसे सलीब दी गई? इसके बारे में दो मशहूर रिवायत मिलती है। एक रिवायत के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम को धोखा देने वाले गद्दार की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम जैसी बना दी गई और वही पकड़ा गया। दूसरी रिवायत, ईसा अलैहिस्सलाम के एक वफादार साथी ने कुर्बानी दी, उसकी शक्ल बदल दी गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुरान किसी एक का नाम वाजे नहीं करता, सिर्फ इतना बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल नहीं हुए बल्कि जिंदा उठा लिए गए। यहूदी मुरब्बी और रोमन सिपाही गुमराही में रहे और उस आदमी को जंजीर में जकड़ कर लोगों के सामने घसीटते रहे और सूली पर चढ़ा दिया। वक्त गुजरता गया, बैतुल मुकद्दस का वो राज, वो रात सिर्फ एक लम्हा नहीं बल्कि तारीख का सबक बन गया। ये सबक हमें ये सिखाता है, जब भी अल्लाह का नबी या कोई आम इंसान अल्लाह और उसकी हिकमत की बात करता है, वक्त के फिरौन और तकवा का लिबास पहने मुनाफिक हमेशा उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनके दिलों में हसद और खून सवार हो जाता है और वो अपनी गफलत और घमंड से हक का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। ये रात सिर्फ एक नबी के लिए नहीं थी, ये हर मोमिन, हर इंसान के लिए सबक है। हक का साथ देना हमेशा मुसीबत से भरा होता है, मगर आखिरत और अल्लाह का फैसला हमेशा इंसाफ और जीत में होता है। ये वाकया अभी खत्म नहीं हुआ। ईसा इब्ने मरियम वापस आएंगे जब दज्जाल का फितना उठेगा। और आपने अभी तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कौम का अंजाम का वीडियो नहीं देखा तो कमेंट में उसका लिंक है और सब्सक्राइब करना मत भूलना।